Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's PSL 7th edition of the greatest, I think, one of the PSLs we've ever seen. Presented by Cadbury's Dairy Milk, brought to you by none other than Zameen.com, and of course they boast of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest portal in the world. And of course what they've also done is they brought the buyer and the seller together as far as the convenience is concerned. They started from nothing in 2006 and now they are the largest property portal in Pakistan. Our transmission partners, none other than Marina Sports City, and of course Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers. They have again done something which no other property or I'd say housing society has done. They've got the biggest housing estates. Why? Because they've got the biggest sporting complex in the products. And then Lahore Qalandars are their partners, and being their partners, all their future matches will be played once their grounds are complete. Our sponsors, well, they are none other than Alpers, and of course this program is presented by Coca-Cola. आज का मैच again nail biting आ रहा है और it's going to be a good finish, but कह दिया nail biting, whether it happens or not, that remains to be seen, because Peshawar Zalmi ne 185 for 7, and we've got Haris who scored 29 in 17 balls, Livingston 0, but he was bowled by a pearler, as they say in the cricketing terminology. And of course हमारे panelists आपको बताएंगे, the 3 panelists, former test cricketers, इंतखाब आलम, Salim Malik, and of course Misbah Haq, इस पर तबसरा करेंगे. But Shoaib Malik, again, ये commentators भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, at the age of 40, you know, they say men get naughty, but he is absolutely fighting like anything. So he's got 58 in 41 balls. And then Hussain Talat, 51 in 33 balls, and Ben Cutting, 36 for 14. Again, एक किस्म भी आज का एक मैच हुआ है between Suhail Tanveer and of course Ben Cutting. इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे. Is another fine coming up or not? लेकिन पहले इसकी ज़रा बैटिंग कर लेते हैं जी, बताएं. बिल्कुल, आज मलिक और तलत को देख के I really enjoyed it. The way Malik played, as you said, he's 40 years old, लेकिन still very fit, very agile and very alert. बहुत अच्छा खेला. तलत also, then Cutting, coming in and hitting 4 sixes. तनवीर को वो थोड़ी बात इनके मेरे ख्याल आपस में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ क्या है. ठीक है, वो आपको छिक्के मार रहा है तो डोंट गेट अपसेट. द मोमेंट यू गेट अपसेट तो फिर आपसे बॉलिंग नहीं होती. और कभी कभी आप किसी को छेड़ देते हो ना, उसका कंसंट्रेशन ख़त्म करने के लिए, तो काम एंड कूल रहना चाहिए. यू डोंट लूज योर रैग, ऊपर नुकसान ही होता है. दोनों का जाता कंसंट्रेशन एक्चुअली, छिक्के खा लेगा. लेकिन मुझे आज एक बड़ी खुशी हुई देख के कि पेशावर ज़ुल्मी ने 2 लेग स्पिनर आज खिलाए इन्होंने. मिसबा भी मेंशन कर रहा था, वेरी गुड, वेरी ब्रेव डिसीजन. लोग स्ट्रगल करते हैं ना, इनको गुगली का पता चलता है. ज़्यादातर मैंने देखा है दोनों स्पिनरों को ज़्यादातर ये गुगली करते हैं. लेग ब्रेक इनके लिए सरप्राइज बॉल होता है. तो मज़ा आया आज दोनों लेग स्पिनरों को देखते हुए. बिल्कुल जी. सलीम पीजे, ये आज जो देखे ना, जो सबसे अच्छी इनिंग थी वो ऑब्वियसली ऊपर से 19 रन्स किए उसने, यंगस्टर ने, मोहम्मद हारिस ने. पर मैच्योर इनिंग जो थी वो मलिक की थी, क्योंकि अर्ली ऑन नसीम शाह ने 2 विकेटें पहले सेकंड ओवर में मेरा ख्याल आउट कर दिए थे 2, और उसके बाद इनिंग बिल्ड करना ये शो करता है कि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर का कितना एडवांटेज होता है कि उस एज में भी आके उसने दुक्के और फिर इनिंग लेके चला. उसके बाद नीचे ऑब्वियसली तलत बहुत अच्छा खेला उसके साथ, दोनों ने इनिंग बिल्ड की. फिर 4-5 ओवर रहते थे जब मलिक ने थोड़ा सा जल्दी कर गया, मैं समझता हूँ, मगर एडवांटेज फिर भी इनको हुआ कि 2 आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में तनवीर को जो 27 रन हुए, वो गेम मैच में वापस लेके आ गए इसको, गेम को. और आखिरी ओवर अगर नसीम शाह का देखें, उसने 3 रन दिए सिर्फ,
उसकी ओवर में बिल्कुल रन्स नहीं हुए और उसने सबसे बेस्ट बॉलिंग की इसमें। फिर आप उधर आ जाएं तो उधर जैसे स्किपर ने कहा कि 2 लेग स्पिनर, रॉय जो है वो तो वो तो लगता है उसको स्पिनर खेलना नहीं आता, स्पेशली लेग स्पिनर। आप देखें वाइड बॉल था जिस पे वो आउट हुआ, बिल्कुल वाइड बॉल, वो बैक फुट पे गया, उसने वाइड बॉल की, अगर छोड़ देता तो शायद वाइड बॉल हो जाता, मगर वाइड बॉल के खेला, आउट हुआ। फिर अगला आउट हुआ। तो मतलब ये है कि और जैसे स्किपर ने कहा कि लेग स्पिनर जो है ना इनको खेला नहीं जा रहा। आई डोंट नो यार, हम पाकिस्तान में, मेरा मतलब बॉल जब डिलीवर होता है तो आपको पता चलता है कि ये क्या है। उसके बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे नूर से हुई कि उसको मैं समझता था कि ये बड़ा वैरायटी बॉलर है, एक चाइना मैन करता है, फ्लिपर करता है, मगर उसकी लेंथ अगर आप देखें तो वाइड बाहर बॉल फेंक रहा है, उससे बॉलिंग नहीं हो रही। तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा सा बॉलिंग में मेरा ख्याल कोयटा को देखना पड़ेगा। इनको उसको नहीं खिला रहे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो ऑस्ट्रेलियन है, क्या नाम है उसका जी, आज इरफान नहीं खेला, हाँ फॉकनर को नहीं खिला रहे, हालांकि वो बड़ा अच्छा है। फिर स्मिथ देखें, इतनी अच्छी बैटिंग पिछले मैचों में भी उसने की थी और बीच में उसको इन्होंने क्यों निकाला, आई डोंट नो। और मैं समझता हूँ कि आज का मैच अच्छा हो रहा है, देखें इंशाल्लाह, देखें कौन जीतता है। मेरे ख्याल में तो फ़िलहाल तो स्ट्रगल कर रही है कोयटा। अच्छा जी मिसबा, ओवरऑल अगर देखें आई थिंक पेशावर वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द वर्ड गो। उनकी जो टीम सिलेक्शन थी, टॉस के बाद स्ट्रेटजी थी कि हमने क्या करना है, हमने रन्स ऑन द बोर्ड लगाने हैं। फिर 2 लेग स्पिनर देखते हुए उनकी बैटिंग लाइनअप को कि इनके तीनों ऊपर के जो बैट्समैन हैं उनसे गुगली पिक नहीं होती, इवन सरफराज को भी गुगली उस तरीके से वो कंफर्टेबल नहीं होता। उमर अकमल लेग स्पिनर रीड नहीं होता, रॉन्ग वन उसको पता नहीं चलता। इफ्तिखार भी अगेंस्ट स्पेस अच्छा है, स्पिन पे थोड़ा सा वो भी स्ट्रगल करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन था। और फिर लेग स्पिनर्स को ना सिर्फ खिलाया है, अर्ली ऑन पावर प्ले में स्ट्रेट अवे पहला ओवर कॉन्फिडेंट था कप्तान भी, और जो कॉन्फिडेंस शो किया है, आई मीन नॉन रेगुलर लिविंगस्टन हम समझते हैं, बट द वे ही बोल्ड टू जेसन रॉय, उनको अंडर प्रेशर कर दिया, उसकी विकेट ले ली। फिर उस्मान आया, उस्मान ने विंस को आउट किया, उससे आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, आज सही जगह पे गेंद गिरे, और वो जो पहले आगे पीछे बॉल वो नहीं हुए, इवन एंड तक प्रेशर दोनों ने बिल्ड किया। तो आई थिंक ओवरऑल बड़ा कंट्रोल में रहे हैं। फिर जो पार्टनरशिप लगी है, मलिक ने जिस तरह खेला और साथ हुसैन तलत, आई थिंक दे टुक द गेम अवे फ्रॉम देम, एंड द वे बेन कटिंग फिनिश, आई थिंक वो जो पीछे कितने मैचों में वो रोल उसको दिया हुआ है, वो रोल उस तरीके से नहीं हो रहा था, लेकिन आज उसने वो आके जो उनको मोमेंटम दिया नीचे से, दैट मेड इट पॉसिबल कि हाँ जी इतना बड़ा टोटल लगे। ओवरऑल कोयटा आई थिंक बॉलिंग वाइज नसीम शाह एक्सीलेंट स्पेल, नए बॉल से एंड पे एक ही होप नज़र आ रही है उनकी पूरी टीम में, बॉलिंग में स्पेशली। बाकी अगर देखें तो समझ नहीं आ रही कि यार, आप देख रहे हैं मैच तो आपको समझ नहीं आ रही कि यार 12 स्कोर कैसे खा लिया है इस बॉलर ने। आप 2 गेंद ठीक करते हैं, उसके बाद फुल टॉस कर देते हैं, डाउन द लेग कोई ऐसा बॉल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, आराम से कट लग जाती है। तो दैट्स व्हाट हम हमेशा शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि यार ये वाले बॉल तो आप कट डाउन करें, बैट्समैन अगर मारता है तो मार ले, लेकिन आप ऐसे बॉल तो ना करें कि जो बस बैट्समैन ना चाहते हुए भी चौका मार दें। आई थिंक ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग, एंड पेशावर मेरे ख्याल में डिजर्व करते हैं आज के मैच जीत रहे। लेंथ भी इनका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मिसबा ने कहा कि कोई लेग साइड पे कर रहा होता है एक बॉल, कुछ फिर शॉर्ट पिच कर देते हैं, ऑफ साइड के बाहर कर देते हैं, मतलब कोई भी विकेटों में बॉल नहीं कर रहा किसी बॉलर को भी आप देखो। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है पीजे के लेग ब्रेक किसी को समझ नहीं आ रही। वो विंस को देखो, उसको देखिए तो आज जो उमर अकमल आउट हुआ है यार, तो मतलब आप पिछले विंस भी 99 पे आउट हो गए, और दूसरा जो है हमारा एक जी पीछे बात दरअसल ये है कि ये इनका बड़ा अच्छा फैसला था कि ब्रिंग तो बैट फर्स्ट, बैटिंग सेकंड में जो है लोगों का कुछ लोग समझते हैं कि बैटिंग सेकंड जब ओस गिरती है तो गेंद स्किड होगा। गेंद स्किड इस विकेट पे नहीं होगा क्योंकि ग्रास ही नहीं इस विकेट पे। अगर तो विकेट के ऊपर घास हो, ओस पड़े, फिर गेंद स्किड करता है, यहाँ गेंद ग्रिप करता है,
क्योंकि घास नॉट अ शेड ऑफ ग्रास ऑन द विकेट, तो ग्रिप करने के लिए दोनों लेग स्पिनरों का गेंद हुआ, वो स्टंप हो गया, उसको कट मारने का वो इधर आउट हो गया। तो ये कि विनिंग द टॉस बैट फर्स्ट। तो पहले दिन से यही हम कह रहे हैं कि अगर गंजी पिच होगी बिल्कुल, तो ड्यू जैसे ही गिरेगी तो वहाँ पे बॉल फंसेगा, ग्रिप करेगा। अच्छा, ये मिसबा ने जिक्र किया सारों ने, बड़ी मज़ेदार बात इसने की। हम हमेशा क्रिकेट सेंस की बात करते हैं, इसने कहा इसने एक बात सीखी है कि यहाँ आपके पास सेंस है या नहीं, आ नहीं सकती आपके पास। That's good. पॉसिबल नहीं है ना। Well done, मिसबा। आज happy birthday to Naseem Shah. Naseem. You know, he's 19 today, so that's a great. Excellent spell on birthday. And what a good मुझे birthday एक present. ही उम्मीद नजर आ रही है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी हमने टेस्ट में भी उसको रिजर्व में रखा है। I mean, he was carrying injury before in New Zealand. Otherwise, I think उसका मैच नहीं है। पेस उसकी देखें, शॉर्ट बॉल पे लेट हुए बैट्समैन। हुसैन तलत 50 पे खेल रहा था, बैन कटिंग जिस तरह मार रहा था, लेकिन वो इस स्लो पिच पे भी जब उसको शॉर्ट बॉल किया तो वो रह गया यहीं पे। नहीं, वो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी पीजे कि उसने रीड किया बैट्समैन को। उसने स्लो बॉल की, वो ये सोचते रहे कि अब ये स्लो करेगा, उसने बाउंसर्स दिए। इसका जो तो ये उसने बैटल वो जीता है। और स्लोअर वन भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसी पिच पे, स्लोअर वन के जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा ग्रिप, अब ये छोड़ने वाला स्लोअर वन नहीं कर सकते। इसका एक्शन बहुत, आपको कोई स्लाइड सी भी चेंज नज़र नहीं आती, यहाँ से आके बिल्कुल आके तेज बॉल की तरफ मारता है ये स्लोअर वन, और वो और डिफिकल्ट हो जाता है। और अच्छी लाइन पे थे। अच्छा, अब just talking about Naseem, do you think इसको instead of reserves जरा मेन स्क्वाड में डाल देंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, इसने ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इसकी पेस है, 145 प्लस करता है। तो ऐसे बॉलर तो आपको चाहिए कि टीम में होने चाहिए। और वो जैसी बॉलिंग कर रहा है, पिछले 2-3 मैचों में उसने 5 आउट किया, एक मैच में 5 आउट। तो ये उसको मेरा ख्याल है कंसीडर करना चाहिए। रिदम इसका बहुत अच्छा है, रन अप इसका बहुत अच्छा है, बैलेंस बहुत अच्छा है। जब ये गेंद डिलीवर करता है, लाइन बड़ी अच्छी है और पेस भी है, यानी इसके पास तीनों चारों चीज़ें हैं। इसको इसमें है जीन्स के इसके पर वैसे भी उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपका फ्यूचर है आगे। इसने पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकता है ना, 19 साल का है। अब आप 30 साल वालों को तो लेके नहीं, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम देखें ना, हसन अली आपके पास, आई डोंट नो हुज बीन सीइंग हिम, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप वो डिटोरेशन की तरफ गया है वो। अरे हसन को अगर आप देखें ना, उसकी और उसकी पेस से कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो आया भी मीडियम पेसर ही था, बहुत तेज़ नहीं था। ये था कि उसका बॉल स्विंग होता था और उससे उसकी बचत होती थी। अब मुसीबत ये है कि उस बेचारे का स्विंग नहीं हो रहा, ना उसका यॉर्कर लग रहा है, और वो बॉल भी लाइन पे नहीं कर रहा, कभी टांग पे, कभी वो एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है जब से आया। देखें, जो अभी सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए, आपके जितने भी बॉलर हैं यहाँ पे शाहीन के अलावा, दे लुक आउट ऑफ फॉर्म। एक बंदा जो आपका नए बॉल से भी, मिडिल में भी, एंड पे भी लग रहा है कि थ्रेट है बैट्समैन के लिए, अच्छे रिदम में लग रहा है, फिटनेस उसकी ज़बरदस्त, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये बेस्ट टाइम है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में। आप ये बेस्ट टाइम है जब वो फिट है और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। उसको अगर चांस नहीं मिलेगा तो होगा क्या, नुकसान होगा। आपके बाकी सारे बॉलर तो आउट ऑफ फॉर्म है, स्पेशली इस्लामाबाद जैसी विकेट जहाँ बॉल हिलेगा, वहाँ ये नहीं है कि लाहौर या कराची अगर तो हिलेगा, ऑफ द विकेट हिलता है गेंद, तो फिर तो हसन अली विल बी यूजफुल। अगर तो हिलेगा, क्योंकि देखे ना जिस तरह उसका हायाम एक्शन है, वो तो स्विंग करेगा ही नहीं, उसका तो स्विंग उसका कहीं है ही नहीं स्विंग। पर उसका तो रिदम ही नहीं आ रहा ना, उसका तो रिदम रोला ही नहीं ये है कि उसका तो रिदम ही नहीं है। जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है और पेस भी है, और वहाँ ये ज़्यादा मुश्किल डाल सकता है बाकी बॉलरों की निस्बत, क्योंकि शहीन के साथ एक ऐसा बॉलर। अच्छा, व्हाट अबाउट उस्मान, डू यू थिंक इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आगे इसको लेके आए कि नहीं? देखिए, ही इज़ बीन विद द टीम नाउ ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं उसके, बट मैं कहूँगा कि उसका अपना भी कसूर है। जब भी उसको चांस मिलता है, यहाँ पर भी अगर आप देखें शुरू के मैचेस में, तो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। एक ही इशू है उसका फ्रॉम डे वन, दैट इज़ हिज कंसिस्टेंसी। यानी आप बॉल एक जगह पे पिच नहीं हो रहा, कभी आगे हो रहा है, कभी पीछे हो गया। लेग स्पिनर अगर हर ओवर में 1 से या 2 बॉल पीछे कर देता है,
तो गेम ओवर है। वो आपको 2 बाउंड्रीज लग जाती हैं, आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं। एज ए कैप्टन कभी भी मैं अगर कप्तान हूँ, मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा उसको बॉल देते हुए, क्योंकि मुझे यही होगा कि ये अगर 2 बॉल ऐसे कर देता। अदरवाइज आई थिंक वंडरफुल वेरिएशन है उसकी, फ्लिपर अच्छा करता है, गुगली अच्छी खासी इसकी टर्न होती है, लेग स्पिन, वाहिद लेग स्पिनर आप जितने भी लेग स्पिनर देख लेंगे जिसका बहुत तेज़ टर्न करता है, बॉल टर्न होता है और बाउंस मिलता है इसको हाइट की वजह से। इट्स नॉट ईजी टू हिट हिम। एरिया, उस एरिया पे लैंड करना ही सबसे बड़ी बात है। आई डोंट नो इसके एक्शन का अभी तक वो बहुत काम हुआ है कि रिपीटेबल एक्शन हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए, बट आई डोंट नो क्या वजह है कि वो थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट हो जाता है उस वजह से। तो आई थिंक इट्स ऑल अप टू हिम कि हाँ जी मैंने कैसे चलना है। अभी 157 फॉर 3 है इस वक्त, 3? नो फॉर 7, लेकिन मैंने देखना है कि ये जो 163 का टारगेट करते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे कोई पेट्रोल तो 163 हो गया तो वो तो आपका वो तो टारगेट अचीव हो गया हमारा। लेकिन अब ये इसको करेगा कि नहीं 157 for 7, ये अब आगे देखते हैं। लेट्स सी। बाकी के ओवर कितने, 2 बचे हैं कि 1 ओवर है? अभी मेरा ख्याल राउंड अबाउट को लास्ट ओवर चल रहा है इस वक्त जी। और कितना चाहिए? और 5 बॉलों में इनको अब 30 रन चाहिए। अब लेकिन ये ना हो कि अगर 30 हो तो 30 रुपये और पेट्रोल बढ़ जाए, तो बट लेट्स वेट एंड सी। वी होप नॉट। 163 तो हो गया, 12 रुपये बढ़ गया पेट्रोल। बट एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। So there we are, final scores 161 for 8 and a disappointment I think as far as cricket goes. अब टाइम आता है हम आपको एक सवाल देते हैं जिसमें आप एक बैट जीत सकते हैं। ये है क्रिकेट बैट और ये बैट हमारे 3 जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, बल्कि साबिक टेस्ट कप्तान, ये साइन करते हैं। और सवाल बड़ा इजी है। स्किपर आज दूर चले गए आप, चले ये आगे, उससे छोटे हो गए। मैं छोटा हो गया। कौन से पाकिस्तानी प्लेयर ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, ये बताइए। कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले? इसका जवाब दीजिए 03172424 और फिर आप सही जवाब देंगे तो आपको ये ऑटोग्राफ बैट मिलेगा, जो कि मैं समझता हूँ कि एक इट विल बी अ मास्टरपीस। अपने मेंटल पीस पे आप इसको लगा के रखें और बताएं कि 3 पाकिस्तान के साबिक कप्तानों ने ये साइन किए हुए हैं। अब बात आती है कि व्हाट नेक्स्ट। स्किपर, व्हाट नेक्स्ट? हमें किस एरिया में ज़्यादा, अगर ओवरऑल पीएसएल को हम देखें, किस एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी चाहिए? बिकॉज ये तो हमारी होम सीरीज़ है। होम सीरीज़ के साथ अब आपका इंटरनेशनल सीरीज़ भी है, टूर भी हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी आ रही। बट हमें किस चीज़ पे करें कि हम अपने इससे फ़ायदा उठाएं, जिस तरह आईपीएल उठाती है, हम ऐसी कुछ टीम बनाएं। अच्छा, दरअसल बात ये है कि ये 7 साल हो गए पीएसएल को, और आपने देखना ये है कि हमें इस फॉर्मेट से आपको कितने लड़के मिले हैं जो समझते हैं कि आप दे कैन ईजिली कम टू द पाकिस्तान टीम, या ओडीआई ले लें या T20 ले लें या टेस्ट पे चले जाएं। एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो। और इनको मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो स्पेशली बाहर से आते हैं ना, इनको ज़रा ढूंढने पड़ेंगे ताकि इसका जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा वो और ऊपर लेके जाएं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। जी, अगर आपने पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट पीएसएल से करनी है तो मेरा ख्याल ये कोई नहीं है क्राइटेरिया, क्योंकि आप T20 से तो प्लेयर्स नहीं लेके जाएंगे उसमें टेस्ट मैच में। लेकिन अब साइटर तो होगा ना आपके पास। यार आप देखो कि ये तो अब वो लोग खेल रहे हैं जो बॉटम एंड से खेलते हैं। हर बंदा तो लेग साइड पे शॉट खेल रहा है, तो आप क्या टीम अपनी सिलेक्ट इससे किया करेंगे? कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से आपको पिक करने चाहिए। आपका जो फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं, यहाँ आप उन लड़कों को लेके आए ना जो परफॉर्म करते हैं, इससे सिलेक्शन मैं हो सकता है मिसबा या स्किपर मेरे से डिसएग्री करें, पर मैं समझता हूँ ये तो क्रिकेट स्पेशली छोटे बच्चों को तो खेलने नहीं चाहिए।
क्योंकि आपने प्लेयर बनाना है 4 ओवर्स का या आपने प्लेयर बनाने हैं पाकिस्तान जो लंबा खेलें। अगर आपने 4 ओवर्स के लिए बनाने हैं तो फिर इनमें से प्लेयर लें। आप कौन सा प्लेयर, मुझे कोई एक दिखा दें जिसको आप कहें कि ये पाकिस्तान के लिए खेलेगा, कोई एक दिखा दें। नसीम शाह खेलेगा, फास्ट बॉलर वो तो ऑलरेडी खेल चुका है, बट स्टिल ही इज ऑलरेडी हैट्रिक कर चुका है बट टेस्ट स्टिल मैच ही में। इज स्टिल इन द कंटेंशन। आप ये देखें ना, आपके पास ये शाहीन शाह अफरीदी है, शाहीन आपके शाह पास अफरीदी कादिर- खेला हुआ है नहीं, यार। खेला हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ। द क्वेश्चन इज, इस कंपटीशन की बात है। मगर पीजे इससे आप प्लेयर नहीं निकाल सकते। आप यंगस्टर की फिर कहाँ से निकालेंगे आप? अभी आप फर्स्ट क्लास से, अपनी फर्स्ट क्लास से प्लेयर देखें जो परफॉर्म करते हैं, उनको खिलाएं। क्यों नहीं खिला सकते आप? आपके देखें कि T20 से तो मेरा ख्याल अंडर 19 के T20 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको फिर आदत ये पड़ जाती है कि क्योंकि कमर्शलाइज है, आपको पैसे मिलते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि हम T20 खेलें, हम आगे जाएं ही नहीं। चले मैं ज़रा अब्दुल्ला से बात कर लूँ। जी अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, कोयटा से बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं जी इसका आंसर है जावेद मियादाद 124 आंसर। वेरी गुड अब्दुल्ला, ज़बरदस्त। ये आप बैट जीत गए हैं। और ये बताएं इसके ऊपर किसका नाम लिखें, आपका या नाम ही लिख दें, जी मेरा ही नाम लिख दें। आपका ही नाम लिखेंगे क्योंकि जीते भी आप हैं। लिखते हैं जी टू अब्दुल्ला। एंड पूरा नाम आपका क्या है अब्दुल्ला? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। अब आपने सिर्फ एक करना, अपना एड्रेस देना, पूरे कांटेक्ट डिटेल्स हमारे स्विच बोर्ड को देने और ये बैट आपको मिल जाएगा। मिसबा, फाइंड क्या है इसके अंदर, या कोई ना कोई तो फाइंड होगा ना? देखिए अभी तक मैं सही बता रहा हूँ आपको, जितने भी PSL हुई है कोई ना कोई लड़का आता रहा है, बट T20 के लिए स्पेशली शादाब आया, हसन अली आया, उसके बाद आसिफ अली आया। ये जो सलीम भाई बात कर रहे हैं ना, दूसरे फॉर्मेट्स के लिए हमें देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है। यहाँ पे जो भी आता है इस फॉर्मेट में परफॉर्म करता है, और सिर्फ यहाँ नहीं, वो पीछे से भी उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, डोमेस्टिक में क्या करके है ओवरऑल। अगर अच्छे प्लेयर आपने देखने हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे वो T20 में आके, इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अगर परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, तो आप देखते हैं कि यार लिमिटेड स्पेशली 20 ओवर्स के लिए ये बंदा जो है हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें प्लेयर मिले हैं पीछे 2020 के लिए या वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, बट लंबी क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली यहाँ से हमें नहीं देखना चाहिए, और वो क्राइटेरिया वही होना चाहिए जो हमारा है। आई थिंक ये PSL डिसअपॉइंटमेंट है इस लिहाज से, क्योंकि इस PSL में अगर आप देखें हमारे ओवरऑल जितने प्लेयर पाकिस्तान से इवन खेल भी रहे हैं, तो कोई उनमें से शाहीन परफॉर्म कर रहा है, और उसके अलावा आप देखें हमारे सारे रिजवान हैं, और जितने प्लेयर मोस्टली हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप, वो उस तरह शादाब, 2 बंदे आपको आउटस्टैंडिंग नज़र आएंगे, एक शाहीन और शादाब। बाकी जो पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग है वो सारे आलमोस्ट फंसे हुए हैं। जो नीचे यंगस्टर आ रहे हैं उनसे भी बॉलिंग नहीं हो रही है। बॉलिंग में सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है कि यार PSL जो इस ब्रांड था, ये बड़ा ब्रांड इसलिए था कि यहाँ पे बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी। IPL से जब कंपैरिजन होता था या बाहर की सारी लीग्स के साथ, तो क्वालिटी बॉलिंग जो थी, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो थी वो बहुत अच्छी होती थी। बट यहाँ पे तो 200 ऐसे हो रहा है, और 45, 50, 45, 50 4 ओवरों में हर बॉलर ना में कोई इमर्जिंग कैटेगरी में पहले हर दफ़ा कोई ना कोई स्पिनर नज़र आता था, अच्छा फिंगर स्पिनर आता था, कोई लेग स्पिनर नज़र आ जाता था, कुछ नहीं है। अभी आप देखें कोई परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही, तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मिसबा टेस्ट प्लेयर्स Even जो batsmanों हमारे में देखें जो तो हमारे उस तरीके टेस्ट से- प्लेयर हैं, उनके अलावा जो परफॉर्म कर रहे थे वैसे भी करते हैं। एक हारिस और कासिम अकरम की जो एक 2 इनिंग्स नजर आई हैं आपको, नए लड़के यंग्स, जब जीशान ने जिस तरीके से ओवर, उसने 2 ही ओवर किए हैं बेसिकली, थोड़ा सा वो लगा अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो अगेंस्ट भी कराची बाबर को out एक्साइटेड किया। हो गया और एक्स्ट्रा मेरे ख्याल उसने ज़ोर लगाने की कोशिश की और वो अनफिट हुआ। पीजे इसमें आप ये देखो कि इंटरनेशनल, अब कोयटा को ले लो, राय अगर स्कोर नहीं करता तो इसका मतलब कोयटा नहीं जीती। उसने परफॉर्म किया 2 मैचों में तो कोयटा जीती, अदरवाइज़ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लोकल प्लेयर ही रह जाते हैं ना नीचे। किसकी परफॉर्मेंस है मुझे एक बताओ। फिर मुझे बताया ना, आज जो मुझे एक फिगर पता चली आपके है, वही प्लेयर कर रहे हैं, देखें जो इंटरनेशनल रिजवान कर रहा है, फ़खर जमान कर रहा है, बाबर ने ईशान किया उस कर रहा है। तरीके से नहीं, ईशान कर रहा है जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, शाहीन कर रहा है, शादाब कर रहा है, बट दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द टीम।
हमें नीचे से आई थिंक हमें चाहिए, जैसे पहले कोई हर पीएसएल में 1 या 2 लड़के आते थे। पिछले साल धानी आया था, उसने टॉप विकेट टेकर था, उसने इस तरीके से आके परफॉर्मेंस दी और उसके बाद वो टीम में भी आया। ऐसा अभी इस पीएसएल में ऐसी कोई चीज़ नज़र बल्कि नहीं। बहुत सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं जी, पीछे से कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो उनको रिप्लेस करे। कि उसके ऊपर अब ये $25,000 से लेके $1,75,000 हाईएस्ट फी है वो। आई मीन दैट इज़ योर ब्रैकेट, दैट इज़ योर राइट अप टॉप, और $25,000 नीचे। तो जब हम इस तरह की जो कहते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर या न्यू प्लेयर्स, हम इन पे क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? $25,000 देना, आपके पास लड़का निकलेगा अच्छा। वही बात फिर आ जाती है ना कि हाउ मच मनी यू वांट टू स्पेंड। Yeah. यू नो, जितने आप स्पेंड करेंगे, अच्छे प्लेयर लाएंगे, अपने प्लेयरों को भी इंसेंटिव देंगे, तो फिर ही आगे बात बनेगी ना। ठीक है, ये बड़ा अच्छा ब्रांड बन गया, लेकिन इसको आपने ऊपर लेके जाना है। तो अगर आपने ऊपर लेके जाना तो फिर आपको यू हैव टू स्पेंड मनी। लेकिन उसमें देखें सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर है, इमर्जिंग प्लेयर खाली कैटेगरी बनाने से या हर टीम में 11 में एक प्लेयर डालने से उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना। हाँ, ये दिस इज अ डिबेटिंग देखिए, पॉइंट। जब तक आप उनको, जब आपने उनको डाला है तो उन पे ट्रस्ट करें, उस बंदे को डालें जिसको आप समझते हैं कि यार, जैसे आकिफ आया था, शादाब आया था, हसन, ये सारे इमर्जिंग प्लेयर आए थे। आप उनको प्रॉपर चांस देंगे, जिस भी उसमें वो आए हैं। बॉलिंग इमर्जिंग खेल रहा है जी, ना उसको बैटिंग मिल रही है ना बॉलिंग मिल रही। मोस्टली आप मैचेस उठा के एंड पे एक सर्वे कीजिएगा कि यार इमर्जिंग प्लेयर जो खेले हैं उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है। वो जस्ट एज अ फील्डर खेल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना, इस कैटेगरी को आप जो है ना, इस कप्तान हैं, टीम मैनेजमेंट है, उनको बड़ा ज़रूरी है। ये तो फ्रेंचाइजी बोर्ड की को चाहिए ना। प्रॉब्लम है ना, दे डोंट वांट टू लूज इट। नहीं, बट डू यू पर एग्री, ये जो skipper कैटेगराइजिंग कर रहे हैं हम प्लेयर्स की, डू यू एग्री विद दैट? है डू यू एग्री कि इसको कैटेगराइज जो करते हैं हम प्लेयर्स को? ये तो हर जगह ही होता है। नहीं, बट ये तो ट्रेंड है ना जी। बट डू वी एग्री, इसका जो मिसबा का जो पॉइंट है कि देखो ना, अगर वो एक जूनियर प्लेयर है, वो कहे यार मैं तो सी कैटेगरी का हूँ, ठीक है, बट आपने किसी को इंसेंटिव भी तो देना ना आगे। तो ये तो मैं बात कर चुका ना, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। या। उनको इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा। क्या देंगे आप डरते हो इनको चांस देने के चांस लिए कि देने मैच ना हार जाए, या आप मैच जीते या पर उनको चांस दें। अगर आपने अपने यंगस्टरों को ऊपर लेके जाना तो देन यू हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटी। पर स्किपर उसके लिए तो फिर क्रिकेट बोर्ड को स्टेप लेना चाहिए ना, कि यार अगर आप किसी इमर्जिंग प्लेयर को खिलाते हो, एज ए बैट्समैन खिलाते हो या एज ए बॉलर खिलाते हो, तो उसको 4 ओवर करवाएं। अब ज़रूरी नहीं है या आपके मेन बॉलर 40-40, 50-50 स्कोर खा रहे हैं, तो अगर वो यंगस्टर अगर सीखने के लिए एक आध मैच में स्कोर उसको हो जाता है, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ना। ये दरअसल कप्तान पे बहुत डिपेंड करता है कप्तान कि स्किपर आपने उसको किस वक्त, अगर आपके पास वो बॉलर है, आपने उसको किस वक्त बॉलिंग करवानी है। इट डिपेंड्स ऑन द कैप्टन आल्सो, देखिए, कॉन्फिडेंस। मैंने पहले भी इस पे बात की थी कि ये जो हर साल हम ये चेंज करते हैं कि वो थोड़े से मैच खेलते हैं तो वो उस कैटेगरी से निकल जाते हैं यंगस्टर। जब वो थोड़ा इस काबिल होते हैं कि वो खेलें, वो सिल्वर में चले जाते हैं, गोल्ड में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे उनका कंपटीशन बहुत सारे और सीनियर प्लेयरों से होता है, तो वो बेचारे वो कहीं किसी टीम में पिक ही नहीं होते। तो हमें इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि भाई जो इमर्जिंग प्लेयर है उसको कब तक हमने रखना है ताकि उसको चांस तो मिले। ये क्या हो रहा है? बेन कटिंग एंड सुहेल तनवीर, ये जो आज इंसिडेंट हुआ है, तो वो मेरा ख्याल उसको कह रहा था यार मैंने अगला भी सीज़न खेलना है, ज़्यादा ना मारो मुझे। आई थिंक ये को प्रीवियस इनकी कुछ चल रही है पिछले मैच में आउट किया हो उसने, या कोई चीज़ चल रही हो, कुछ इशारा किया हो सुहेल ने, तो आज छक्का मारने के बाद उसने पहले इशारा किया सुहेल को, कटिंग ने कुछ उसने यूं नहीं, किया। मेरा ख्याल उसने कुछ कहा है क्योंकि वो वापस आया है। मैं कह रहा उसने कहा गो एंड फेच इट। Go and fetch it. But you know, अब इस पे you think we should be you know penalizing? आज इसको penalize होगा ये? तो ये डिपेंड करता है रेफरी के, रेफरी पे नहीं, depend करता है। रेफरी 2 इंसिडेंट्स होएगा तो 5% पे आया है। ये चारों ये मैच बाहर का और अदर के सारे। देखिए, वो रिपोर्ट होती है, अंपायर्स ने अगर कोई चीज़ ऐसी सुनी है, कोई लैंग्वेज को ऐसी यूज़ हुई है या कोई कांटेक्ट हुआ है, उसको वो देखेंगे, और अगर उनको लगेगा कि हाँ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है तो फिर वो करेंगे डेफिनेटली। वो नहीं, पर मेरा ख्याल है आजकल तो टीवी पे नज़र आ जाता है मैच, रेफरी डेफिनेटली बुलाएगा ज़रूर उनको।
नहीं देखें, जब आप बाउंड्री से बाहर आते हैं, यू बिलोंग टू द पवेलियन, यू डोंट बिलोंग टू द एक्चुअल गेम। तो वहाँ भी आप इसको फाइन करेंगे। ड्रेसिंग रूम में 2 बल्ले मारते हैं, आपको देखा बल्ले चले हैं कहीं? जी जी बिल्कुल होता है। नहीं वहाँ तो फैंस फिर वो तो आप- टीम करती है, वो तो टीम फिर करती आपकी है। कमेटी है ना जो डिसिप्लिन टीम कमेटी करती है। मगर अंदर तो अंपायर ही करेगा। चले जी, शायद अफरीदी की भी ज़रा थोड़ी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये जो एक्ट्रेस है, ये क्यों नर्स बनना चाहती है, पहले हम बात करनी थी, नहीं हुई है। ब्रेक के बाद इस पर करते हैं। Welcome back to PSL 7, the 7th edition, brought to you by Cadbury's Dairy Milk. अब बात आती है दूसरे सवाल की, किस पाकिस्तानी प्लेयर ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में रन्स बनाए, ये हमें बताइए। और इसका जवाब आप दे सकते हैं, ये सामने आपके स्क्रीन पे भी है। किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने टेस्ट मैच पर सबसे ज़्यादा रन्स बनाए? 0317 2424 045। लाइन्स खुलिए, सवाल अपने जो आपके जवाब है वो दीजिए। और अब हम आपको दिखाते हैं कैडबरीज डेयरी मिल्क, द विनिंग मोमेंट्स एंड व्हाट आर दे। लेट्स हैव अ लुक। बड़ी अच्छा लगा कि वहाब रियाज भी स्माइल करते हैं, क्योंकि जब मैं इनकी बॉलिंग देखते हैं उस वक्त इतनी स्माइल नहीं होती जब 2-3 छक्के लगते हैं, बट गुड। अब हम आपको दिखाते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय मरीना स्पोर्ट्स सिटी। ये तो आपके आगे थे प्लेयर ऑफ द मैच। अब बात आती है शाहिद अफरीदी की। अब इसने बड़ी सर्विस दी है पाकिस्तान को, देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट इट। और जो लास्ट इसने विकेट ली है, विकेट लेके एक जो क्रिकेटिंग टर्म में होता है, एक चुक सी पता लगी पड़ी उसको कमर में, एंड ही एक्चुअली फेल्ट इट। सो ऑब्वियसली दूसरे को तो नहीं पता चलता है, जो खेलता है उसको पता चल जाता है। तो उसने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, मेरी बड़ी सर्विसेज हैं, एंड ही थैंक्ड एवरीबडी एंड ही वांट्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम PSL। आगे KPL में खेलता नहीं खेलता वो वक्त बताएगा। लेकिन एक एक्ट्रेस, उसने जो कहा है मैडम शर्मा ने कि ये मैं तो इनकी नर्स, मैं इनकी एक बनना चाहती हूँ नर्स। तो महिका की ये तस्वीर देखें, ये महिका है, महिका शर्मा। और जितना मैं बात कर रहा हूँ मिसबा उतना ही हंस रहे हैं, लेकिन हंस क्यों रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों हंस रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अफसोस हो रहा है कि काश मुझे पड़ती है चुक। मैंने तो बहुत देर की छोड़ी हुई क्रिकेट। मैं तो तो अभी प्रोग्राम में जो 15वीं दफा आप तस्वीर दिखा रहे हैं। मैंने कहा ये उसने कहा है वैलेंटाइन डे पे, हाँ, वैलेंटाइन डे में उसने वैलेंटाइन कहा डे है। पे उसने या, कहा है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन नो डाउट उसके फॉलोअर्स तो है ना एवरीवेयर। तो अच्छा, ये भारतीय एक्ट्रेसेस क्यों पाकिस्तानी इसको इस तरह का, आपको किया किसी भारतीय एक्ट्रेस ने? नहीं सर, कभी- ऐसा कुछ नहीं। आप बताएं, आप ताड़ी को ज्यादा कुट्टी हो गई थी एक्सपीरियंस। ना? नहीं, क्यों सलीम बात नहीं है? वैसे इमरान, ही हमारे ये- इमरान के पीछे इतने स्टार्स थे। वो तो सलीम भाई बता सकते हैं, उन्होंने तो बहुत ज्यादा टूर किया है ना इंडिया का। स्किपर के साथ नहीं नहीं इंडिया के आपने ये बहुत सवाल टूर आप- मैं आपसे एक्चुअली किया है। मैं एक्चुअली सुना नहीं सकता, क्योंकि जब हम कोच में बैठा करते थे तो ये इमरान खान और बिग जी सरफराज नवाज दोनों एक ही दरवाजे वाली सीट पे, स्किपर को याद है कि वो बैठा करते। तो जो रात को जो भी स्टोरी होती थी वो सारी टीम सुन रही होती थी कि रात को क्या हुआ। वो मेरे अलावा सबको पता है क्या होता था, क्योंकि वो सारा ऊंची ऊंची सब सुना रहे होते थे क्या हुआ है। तो वो मैं सुना नहीं सकता, वो आई एम सॉरी। नहीं, कोई नहीं, होता है। ये मैच की होता है। बात कर लेना। कौन जीता? अच्छा, और कल ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है जी। कल मुल्तान सुल्तान है और ये कल खेलेंगे, लेकिन इनके साथ वो शायद कराची किंग्स भी खेल रही हैं। तो अब वो कराची किंग खेलेंगे, क्या करेंगे, मजाक करेंगे, क्योंकि उनका जो वैसे ट्रैक हमने उस रिकॉर्ड, दिन कहा था पीजे कि कल प्रोग्राम करना है, तो मैच सबसे अच्छा हुआ था। ये मैच अच्छा हुआ था। आज There's भी no कुछ doubt. ऐसा कुछ कहें कि कल मैच अच्छा हो जाए। अच्छा, अगर ये कल कराची किंग्स जीते हैं ऑन अ लाइटर नोट, इनका कोई फ्यूचर है फिर आगे? मेरे ख्याल मिसबा कह रहे थे कि चांस है इनका। इस बार क्या चांस है? मैंने भी पूछा था यार कैसे। अगले 2 मैच खेलने का तो चांस है यार। हाँ, ये हाँ, उन्होंने ये मेरा कहा ख्याल था। मैं सही नहीं सुना मैंने। अगले 2 मैचेस नहीं, बट यू नो, इन ऑल सीरियसनेस आई थिंक दे शुड बी रियली रिविजिटिंग देयर स्ट्रेटजी, डोंट यू थिंक सो कैप? उसके बाद लेकिन अभी तक तो जो भी हुआ वो 7 मैचेस खेले, 7 हारे।
तो एक मैच तो जीतना उनका बनता है ना। तो आई सलमान होप इकबाल सुन लो, एक मैच जीतना बनता है, लेकिन मगर मेरा ख्याल है उन्होंने कसम खाई है हमने मैच नहीं जीतना, क्योंकि इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की थी, 2 अनफिट भी हुए कि यार अल्लाह का वास्ता मैच जीत जाओ। अच्छा, वी होप नॉट, लेकिन अगर ये सारे मैच हारते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होगा ऑफ सम सॉर्ट कि एक कंपटीशन में आप 10 के 10 हार गए? मैंने तो आपको ये कहा था ना कि लग रहा है कि ये रिकॉर्ड करेंगे कायम। हाँ, ये आपने शुरू में कहा था, बिल्कुल। ये आपने क्या सोच के कहा था? बस कह दिया। वाइब्स आ रही हैं। स्किपर कोई है चक्कर, आप बताएं क्या वजह थी? जिस क्योंकि तरह मेरा का ख्याल पिछला लें जी, मैच आसिफ हुआ है। इजाज हमारे पास कॉलर आए कराची से। जी आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या जवाब है मेरे भाई? यूनुस खान ने 11,000 से ज्यादा रन बनाए। कितने? 11,000 से ऊपर, 11,122 के लिए। 11,000 से ये कम है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल करीब भी हैं और नाम भी आपने सही लिया है। तो मेरे भाई, ये स्किपर आ जाएंगे आप? आपने ये तो पूछा ही नहीं था कि कितने रन हुए। नहीं, आपने कहा सबसे हमने ज्यादा रन। नाम का मेन कहा था, मेन नाम ये वो हैं जो इंटरनेट पे नहीं गए होंगे, मकौल आपके आपने सब पूछा था कि सबसे ज्यादा टेस्ट में 10,099 बिल्कुल उनका मेजर स्कोर है। कितना? बट यूनुस खान अगेन अ लेजेंड। आपको यूनुस खान कैसे लगे थे एज अ प्लेयर? आई थिंक यूनुस भाई की बहुत कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली आफ्टर 2010 अंडर माय कैप्टनसी। आई थिंक ही वाज द मेन प्लेयर एट दैट टाइम। जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, अजहर अली की परफॉर्मेंसेस थी, दैट वाज की फॉर अस, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक जितनी भी हम नंबर 1 बने, सेंचुरियाँ थी हर जगह पे थी और बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। और फिर डेवलपमेंट में इन सारे प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स के साथ जिस तरीके से वो खेले, आई थिंक उनके बगैर बहुत मुश्किल था। और फिटनेस फ्रीक था यूनुस। यस, हर मुश्किल टाइम पे ऐसी इनिंग्स खेलना। आई मीन 4th इनिंग में भी उनके सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं। और इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे कि 4th इनिंग में बॉल ऐसे हो रहा होता था समझ नहीं आती, इतने देर रफ बने हुए होते थे और वहाँ पे 100 कर रहे हैं। आई थिंक बेसिकली डिटर्मिन आदमी था बहुत डिटर्मिन था वो, अपनी विकेट थ्रो नहीं करता था। आप मेरा ख्याल जा रहे हैं वापस? जी जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरा ख्याल आप प्रोड्यूसर बन जाए। थैंक यू वेरी मच। आज का शो ख़त्म होता है। कल आपके सामने दोबारा 6 बजे आएंगे और फिर 11 से 12 भी आएंगे। और ऑफ कोर्स कल जो मैच है मुल्तान सुल्तान का, हमें पूरी उम्मीद है कि कराची किंग्स भी कल आएंगे, मैच खेलेंगे वो। और लेट्स होप कि कराची किंग डज़ वेल टुमारो, बिकॉज मजाक अपनी जगह है, लेकिन इन ऑल सीरियसनेस कराची किंग में बड़ी अच्छे लोग हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बट इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो इतना परफॉर्म नहीं कर सके जितना उनको करना चाहिए। वेल, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड लेट्स होप देयर इज़ गुड क्रिकेट टुमारो एट 7:30 in the evening. खुदा हाफिज़।